JLPT. In my previous videos where I mentioned this term, many people asked me to elaborate it for you all. So here it is. Today we're gonna talk about JLPT in brief. So let's roll. It's getting serious on this track, fam. JLPT और you can say Japanese Language Proficiency Test. इस टेस्ट के बारे में आज हम various topics cover करने वाले हैं. Where we will see what is JLPT, how to get admit card for it, how to prepare for exam, my personal experience and what kind of perks and certification you will get. हाँ, perk ये वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं. So without doing any further delay, let's begin with our first point, that is what is JLPT. In simple terms, ये एक proficiency test होता है which is conducted by Japanese Foundation every year in India itself. So this exam conducted twice a year in different 8 regions of India, which are New Delhi, Pune, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Mumbai, Shantiniketan, that is in West Bengal, and last Tamil Nadu. In Tamil Nadu and Shantiniketan, this test held only once a year. सो टेस्ट जनरली जुलाई और दिसंबर के फर्स्ट संडे को कंडक्ट किया जाता है एंड लास्ट ईयर एग्जाम वाज कैंसल ड्यू टू सम चाइनीज वायरस. इसी नाम लेने में भी चिढ़ आती है अब तो. अब अगर पॉसिबल रहा तो इस साल टेस्ट 4 जुलाई और 5 दिसंबर को ऑर्गेनाइज होगा, जो कि आई थिंक नहीं होगा. नाउ लेट्स मूव टू अवर सेकंड पॉइंट, दैट इज हाउ टू गेट एडमिट कार्ड फॉर इट. For this, you can just Google the test centers according to locations and directly ask them for it. Likewise, I did it from Mosai, which is in New Delhi. They will guide you further. All you need to pay is fees, which is between 1000 to 1600. मेरा personally बताऊँ तो 1600 लगा था, वो भी N5 के लिए. 10 to 15 days prior exam you will get your admit card. बस उसको प्रिंट करवा के एकेडमी ले जाना, like we usually do for our exams. Now our third point is how to prepare for exam. For an instance, just think that अभी तुम्हें कुछ भी नहीं आता, मतलब you are starting from scratch. तुम्हें अरिगातो और गोमेने साई के अलावा और कुछ भी नहीं आता है. First thing you need to learn is hiragana and katakana. Katakana is developed to spell foreign names and stuffs like yours and mine. ये hiragana katakana एक तरह की 12 खड़ी है, मतलब वो अ से ज्ञ तक जो अपन पढ़ते हैं ना, बस. So to learn this, I will recommend you Japanese Pod 101. Just visit this channel on YouTube. अगर passionate हो, within a month you will masters in both. टीचर भी जोरदार है. After this, just know your position. I mean, JLPT consists of 5 levels. N1, N2, N3, N4 and N5, where N5 is beginner level and N1 is expert level. तुम कोई सा भी दे सकते हो, बट N1 डायरेक्टली दोगे वैसे भी पास नहीं होगे, तो मतलब क्या है, बस पैसा वेस्ट होगा. सो जनरली लोग N5 से स्टार्ट करते हैं. सो सिलेबस ऑफ N5 इज हिरागाना काताकाना ऑब्वियसली, प्लस 150 kanji characters you need to learn and nearly 700 vocabulary. अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है. सो एग्जाम पेपर, मैं बेसिकली N5 की ही बात कर रहा हूँ अभी, तो ये 2 सेक्शंस में डिवाइड रहता है. फर्स्ट वोकेबलरी, ग्रामर एंड रीडिंग, जहाँ सब कुछ काम आएगा जो भी तुम पढ़े हो, हिरागाना काताकाना, वो वोकेबलरी, हर एक चीज़. और फिर आता है सेकेंड सेक्शन विच इज़ लिसनिंग. कैंसर है ये, जिसमें एक स्पीकर रखा जाएगा और तुम्हें जापानीज कन्वर्सेशन सुनाई जाएगी 2 लोगों के बीच की, अकॉर्डिंग टू विच यू नीड टू टिक द करेक्ट आंसर. ओके, ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ टोटल 180 मार्क्स, 120 ऑफ सेक्शन 1 एंड 60 ऑफ सेक्शन 2. पास होने के लिए ओवरऑल पासिंग मार्क्स रहते हैं 80. ये तो लाना ही है तुम्हें, प्लस दोनों सेक्शंस में इंडिविजुअली भी पास होना ज़रूरी है, विच इज़ 19 आउट ऑफ 60 फॉर लिसनिंग and 38 out of 120 for your first section. So now it's time for my personal experience. तो मैंने N5 की एग्ज़ाम दी थी 2019 में. मैंने न्यू दिल्ली से अप्लाई किया था. सो जब मैं सेंटर पहुंचा था ना यार, तब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरी जैसा पागल होगा जिसे इन सब में इंटरेस्ट है. बट यार वहाँ देखा ना, क्लासरूम की एक भी बेंच खाली नहीं थी. दैट मीन्स जापानीज़ लैंग्वेज को लेके अच्छा खासा क्रेज़ है वहाँ भी. टीचर्स हैव नो आइडिया कि ये क्या है, क्यों है, बस ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पे. सो आई गिव एग्जाम एंड इन 1 month रिजल्ट केम एंड गेस व्हाट, आई सक्सेसफुली पास्ड. मतलब पूरा पास नहीं हुआ था, 5 नंबर से फेल हो गया था. लेकिन ये बात अपने बीच रखना, तुम अपने हो इसलिए भरोसा करके बता रहा हूँ तुमका ना, ये सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच रहनी चाहिए बात.
एक्चुअली आई गॉट 75 मार्क्स और उस सड़े से बाबा आदम के स्पीकर के कारण ना मेरे नंबर लिसनिंग में कम आए थे, इसी कारण से मैं फेल हो गया था। बट सी फ्रॉम अदर साइड गाइस, घर बैठे भी हम पास हो सकते हैं। बट आफ्टर ऑल दैट इफ यू वांट टू टेक एनी ट्यूटर और एनी काइंड ऑफ कोचिंग देन या यू कैन ऑल्सो टेक कोचिंग फॉर JLPT, जस्ट गूगल इट। तो इतनी राम कथा और इतनी मेहनत करके पास हो भी गए तो क्या मतलब आगे क्या? So that will cover our final topic, that is perks and certification of JLPT। JLPT का कोई भी लेवल पास करने पर हमें एक सर्टिफिकेट पोस्ट के थ्रू आता है विच इज अ प्रूफ मेहनत करी है तुमने। नॉट डोंट थिंक कि जापानीज आके तुमको बोलेंगे आ ससुर का नाती तुम्हें नाका में बिठा कर ले जाएंगे चला। बट या देयर आर सम बेनिफिट्स इफ यू सक्सेसफुली क्रॉस एटलीस्ट N2 लेवल, विच इज तुम्हारे रेज्यूमे का वेटेज बढ़ेगा। ऑब्वियसली यार, तुम्हें एक फॉरेन लैंग्वेज आती है, कम बात है क्या बे। देन इफ यू वांट टू स्टडी इन जापानीज यूनिवर्सिटीज, योर JLPT मार्क्स कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यू कैन गेट जॉब इन एनी हायर MNCs वेयर जापानीज प्रोफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड। यानी इस टेस्ट के थ्रू बहुत कुछ अचीवमेंट तुम्हें मिल सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं है, जापानीज आनी ज़रूरी है। आखिरकार टेस्ट इसीलिए कंडक्ट किया जाता है कि तुम्हें यह लैंग्वेज पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना भी आए, और एल्स इट्स जस्ट ए ट्रैश इंक्लूडिंग योर सर्टिफिकेट्स। ये सब कुछ काम का ही नहीं अगर तुम्हें जापानीज बोलना या पढ़ना या लिखना या समझना नहीं आता है। सो गाइज, इस पे ज़्यादा फोकस करो, और मार्क्स तो यार तुम्हें अगर ये सारी चीज़ें आती है तो मार्क्स अपने आप आ ही जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट JLPT। स्टिल इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड आस्क मी देयर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विथ इट फॉर एनी फर्दर डिटेल्स। सो गाइज, बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने मिला होगा। सो यार बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और गाइज शेयर करो। देखो, बहुत लोगों को जापानीज लैंग्वेज में इंटरेस्ट होता है लेकिन उन्हें इसके प्रोसीजर नहीं पता होते, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करो। और यार नया हो तो क्या कर रहे हो भैया, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दो, जल्दी से करो, नए वीडियोस देखने हैं ना, कर दो। तो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।